Good morning class. Welcome to the online classes of Shivaji Group of Institutions. In this class I will teach you subject verb agreement. Subject verb agreement के बारे में आपको बताएंगे बच्चों. ये एक रिवीजन चल रहा है आपका, इसमें सारे चैप्टर जो भी हमने आपको पढ़ाए हैं उसके बारे में आपको डिटेल में बता रहे हैं. ठीक है. देखिए ऐसे आपके कुछ वर्ड होते हैं as well as, together with, along with, in addition to, and not. These are some of the words in which we use the verb according to the first subject. जो हम लोग फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं. जो वर्ब होता है वो सब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करते हैं. जैसे आपने कहा राम as well as his friends dash going to the party. Ram as well as his friends dash going to the party. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू राम आप यूज करेंगे राम as well as his friends is going to the party. Ram as well as his friends is going to the party because we have to use the subject according to the first subject. We have to use the verb according to the first subject. First verb आपका क्या है? राम है. According to Ram you have to use, तो is लगेगा यहाँ पे. क्या लगेगा बच्चों? Is लगेगा. क्योंकि these are some of the words. Some of the words ऐसे words हैं according to which you have to when they are used in the sentence. जब भी इनका प्रयोग सेंटेंस में किया जाता है the verb is used according to the first subject. First subject के according verb का प्रयोग किया जाता है. अब जैसे और sentences हैं रवि along with his friends. Ravi along with his friends dash. Ravi along with his friends dash going to Hyderabad. Going to Hyderabad. Ravi along with his friends dash going to Hyderabad. तो यहाँ पे along with लगा हुआ है, आपने देखा यहाँ पे along with का प्रयोग किया गया है. So you will have to use the verb according to the first subject. First subject के according आपको verb का प्रयोग करना है. First subject आपका रवि है, तो you will use is going to Hyderabad. क्या लगेगा? Is going to Hyderabad. So जितने भी ये सारे words हैं as well as, together with, along with, in addition to, and not, और besides भी आ सकता है यहाँ पे. Besides, when they are used in the sentence, तो आपको जो verb use करना है according to the first subject use करना है. क्या use करना है? First subject के according verb use करना है. So these are some of the words. I hope आपको ये समझ में आया होगा. ठीक है बच्चों. अब इसके बाद और देख लीजिए थोड़े से वर्ड जो होते हैं. Some of the words, more words I will see. जैसे आपने कहा neither, nor, उसके बाद either, or, not only, but also, not only but also, or none but. These are some of the four words. ये सारे four words हैं. When they are used in the sentence, जब भी इनका प्रयोग सेंटेंस में किया जाएगा, the verb is used according to the nearest subject. जो nearest subject लगा है verb के उसके according आप वहाँ पे क्या बोलते हैं इस्तेमाल करेंगे verb. तो nearest subject आपका जो भी हो उसके according आप वहाँ पे verb का प्रयोग करेंगे. क्या करेंगे? verb का प्रयोग करेंगे. जैसे आपने कहा not only Ram but also his
friends dash completed the work. Not only Ram but also his friends dash completed the work. यहाँ पे आपने कहा not only Ram but also his friends. यहाँ पे आप फ्रेंड्स के अनुसार यूज करेंगे। दो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या क्या लगे हैं, एक यहाँ पे लगा है राम और दूसरा यहाँ पे लगा है फ्रेंड्स। सो अकॉर्डिंग टू फ्रेंड्स यू विल यूज द वर्ब। फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे यहाँ पे have completed the work। तो have इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आप has का इस्तेमाल नहीं कर सकते, करा था इसलिए have लगेगा। यहाँ पे is mr नहीं लगेगा, यहाँ पे have और has में से एक लगेगा। तो आप यहाँ पे have का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? have का प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसी तरह ये सारे वर्ड जब भी इस्तेमाल किए गए हो सेंटेंस में तो अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट आप यूज करते हैं। मतलब जो सब्जेक्ट सबसे बाद में दिया हो उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसेस में जो वर्ब होती है। यहाँ पे जो नियरेस्ट वर्ब है वो क्या है? हैव। और पहले वाले में जो नियरेस्ट वर्ब पहले वाले में मतलब फर्स्ट वर्ब सब्जेक्ट जो यहाँ पे लगी है वो क्या है? राम। पहली सब्जेक्ट राम है तो राम के अकॉर्डिंग नहीं करना है, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है बच्चों। उसके बाद और देख लीजिए, आइदर सीता और आई डैश गोइंग टू द पार्टी। आइदर सीता और आई डैश गोइंग टू द पार्टी, या तो सीता या मैं पार्टी में जा रहा हूं। तो सीता और आई, तो नियरेस्ट कौन सा है यहाँ पे? आई है। वर्ब के बगल में ठीक कौन सा है? आई। तो अकॉर्डिंग टू आई आप यहाँ पे यूज करेंगे, क्या बनेगा? आइदर सीता और आई एम गोइंग टू द पार्टी। यहाँ पे आप एम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? एम का, क्योंकि आई के बाद क्या लगता है? एम लगता है। आई के बाद एम लगता है, इसलिए आप एम के हिसाब से यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट को सेंटेंसेस में फ्रेम करते हैं। कैसे हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट को सेंटेंसेस में फ्रेम करते हैं या बताते हैं। तो इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, आपको बताना होगा कि वहां पे वर्ब कौन सी लगेगी, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट या अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट। आपको अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट ही बताना होगा कि वहां पे क्या इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर ये हो गया होगा कि किस तरीके से सेंटेंसेस में हम लोगों को सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट करना होता है। उसके बाद और चीजें दी हुई हैं, जैसे आपने कहा फ्लाई और फ्लाइज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लाई एंड फ्लाइज? दिस इज प्लूरल एंड दिस इज सिंगुलर। ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, बिकॉज फ्लाई में एस लगा नहीं है और फ्लाइज में क्या लगा है? एस लगा है। तो क्या होता है, जब जैसे प्ले है और प्लेज है, ये आपके क्या है? सिंगुलर, और ये जो आपके हैं ये क्या है? प्लूरल। जब वर्ब में एस लगता है तो वो क्या बन जाता है? सिंगुलर, और जब वर्ब में एस नहीं लगता है तो वो क्या बन जाता है? प्लूरल। क्या बन जाता है? प्लूरल। तो यहाँ पे फ्लाई और प्ले में आपने एस लगाया, मतलब एस नहीं लगाया तो ये प्लूरल बन गए। यहाँ पे आपने एस लगा दिया तो भी ये क्या बन गया? सिंगुलर बन गया। तो ये एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि कैसे सेंटेंसेस में इनको यूज करना है। जैसे आपने कहा राम डैश और ब्रैकेट में दिया है प्ले या प्लेज। राम प्ले या प्लेज द पियानो। राम प्ले या प्लेज द पियानो। तो यहाँ पे क्या आएगा? राम प्लेज। क्या आएगा बच्चों? प्लेज। बिकॉज यहाँ पे सिंगुलर के लिए हम जब वर्ब में क्या लगाते हैं? एस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एस का प्रयोग करते हैं। तो राम प्ले द पियानो ये सही है, और राम प्ले द पियानो अगर लिखा हुआ है तो वो रॉन्ग है, वो एरर है। ये सेंटेंस आपका सही है। और
जो रॉन्ग सेंटेंस बना है आपका, जैसे आपने कहा राम प्ले द पियानो, तो ये जो सेंटेंस है प्ले, ये आपका जो सेंटेंस है प्ले आपने यूज किया, ये जो है आपका गलत है, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या लगी हुई है, प्लूरल, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लूरल चलेगी नहीं, क्योंकि जब वर्ब में एस नहीं लगा होता है तो वो क्या होता है, प्लूरल होता है, और जब वर्ब में एस लगा होता है तो वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो ये सिंगुलर वाली जो वर्ब है, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किया जाता है। अगर दो नाउन एंड से जुड़े हैं, जैसे आपने कहा राम एंड श्याम, डैश गुड फ्रेंड्स, तो राम और श्याम जो है वो गुड फ्रेंड्स है, तो आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। जब कभी दो नाउन्स एंड से जुड़े होते हैं, जब कभी दो नाउन एंड से जुड़े होते हैं, तो आप वहां पे क्या इस्तेमाल करते हैं, आप वहां पे आर का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं, बिकॉज टू पीपल आर देयर। कितने लोग हैं यहाँ पे, टू पीपल, एक राम और एक श्याम। एक और सेंटेंस देखिए, द हेडमास्टर एंड द प्रिंसिपल, द हेडमास्टर एंड द प्रिंसिपल, यहां पर भी हेडमास्टर अलग है और प्रिंसिपल अलग है। हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट, The headmaster and the principal have completed their assignment। तो यहाँ पे आप क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे आप have का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, have का प्रयोग करेंगे, because there are two people। ठीक है, हेडमास्टर अलग है, प्रिंसिपल अलग है। ये आपने कैसे जाना, बिकॉज दोनों में दा का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, दा का प्रयोग किया गया है। जब दोनों ही नाउन्स के पहले दा लगा होता है तो इसका मतलब वहां पे दो लोग हैं। कितने लोग हैं, दो लोग हैं। और अगर हेडमास्टर के पहले दा लगा है और प्रिंसिपल के पहले दा नहीं लगा है तो इसका मतलब वहां पे केवल एक लोग हैं। कितने लोग हैं, एक लोग हैं। जैसे कि यहां पे है आएगा, उसके बाद आपने अगर कहा द हेडमास्टर एंड प्रिंसिपल, द हेडमास्टर एंड प्रिंसिपल, यहाँ पे मतलब कि हेडमास्टर और प्रिंसिपल जो है वो एक ही व्यक्ति, क्योंकि दा लगा है हेडमास्टर के पहले और प्रिंसिपल के पहले दा नहीं लगा, इसलिए द हेडमास्टर एंड प्रिंसिपल हैज क्या होगा, डन द असाइनमेंट। क्या आएगा, हैज डन द असाइनमेंट। द हेडमास्टर एंड प्रिंसिपल हैज डन द असाइनमेंट, तो यहाँ पे हैज का प्रयोग किया जाएगा और दूसरे वाले में हैव का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे हेडमास्टर और प्रिंसिपल एक ही व्यक्ति है। कितने लोग हैं यहाँ पे, एक ही लोग हैं, इसलिए यहाँ पे हैज का प्रयोग किया जाएगा, बिकॉज बोथ आर सेम। यहाँ पे एक आर्टिकल लगा है हेडमास्टर के पहले, तो यहाँ पे केवल द लगा है, मतलब दोनों एक ही हैं। और यहाँ पे द हेडमास्टर एंड द प्रिंसिपल दो अलग अलग लोग हैं, बिकॉज हेडमास्टर के पहले भी दा लगा है और प्रिंसिपल के पहले भी दा का प्रयोग किया गया है। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि सेंटेंस जब बनाते हैं तो आर्टिकल का यूज कैसे करना है। आर्टिकल का यूज आप जैसे कर रहे हैं उसी हिसाब से आपको सेंटेंसेस में फ्रेम करना होता है। तो आई होप बच्चों ये सब्जेक्ट टू वर्ब एग्रीमेंट आपको समझ में आया होगा। सब्जेक्ट टू वर्ब एग्रीमेंट आपको क्लियर हुआ होगा। और ये आपका जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं और आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे सिंगुलर वर्ब चलेगा और कहाँ पे प्लूरल वर्ब चलेगा अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ द वर्ड्स। अगर एज वेल एज लगा हुआ है तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे, और अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा है तो लास्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए उसके बाद और भी चीजें कुछ दी हुई हैं, मैनी, बोथ, सेवरल, अ फ्यू, दीज, दोज, ये सारे जो सेंटेंसेस हैं
इनके बाद हमेशा प्लूरल चलता है। जैसे आपने कहा मैनी, जैसे आपने कहा मैनी, सेवरल, बोथ, ठीक है, मैनी, सेवरल, बोथ, अ फ्यू। अगर ये सेंटेंस में इस्तेमाल किए गए हैं दीज, दोज, अगर ये सेंटेंस में इस्तेमाल किए गए हैं तो आप जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो प्लूरल ही होगी हमेशा, बिकॉज इन सब का मतलब होता है बहुवचन। सेवरल माने होता है अनेक, मैनी मतलब बहुत सारे, अ फ्यू मतलब कुछ के लिए भी आर ही लगाएंगे या हैव लगाएंगे। दीज का मतलब होता है ये सारे, दोस्त का मतलब वो सारे, और बोथ का मतलब दो लोग। तो इन सब के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। और एक वर्ड होता है अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ। जिसे आपने कहा अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, a number of students have completed the work, a number of students have completed the work। तो आप नंबर ऑफ के बाद भी आप क्या लगाएंगे? have का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? have का प्रयोग करेंगे। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आया होगा जो भी हमने इसमें बताया है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इसको ध्यान से पढ़िए, लगाइए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। दीज आर, जैसे कुछ और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे स्पेक्टिकल्स होते हैं आपके, ये हमेशा एस के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। ट्राउजर्स, ये एस के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। ब्रीचेस, ठीक है, जीन्स, ये हमेशा एस के साथ ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इनका इस्तेमाल जब सेंटेंस में होगा तो एस के साथ होगा, और इनके आगे हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। इनके आगे किसका प्रयोग किया जाएगा बच्चों? प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा जो भी हमने आज इस वीडियो में पढ़ाया, उसको अच्छे से रिवाइज करिए, और आपका होमवर्क यही है कि आपको इसकी एक्सरसाइजेस करनी है, और अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक हो तो उससे भी लगाइए, ठीक है बच्चों। थैंक यू।